हमारे इवेंट में सोर्स मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन रहे हैं प्रोफेसर संजय कुमार द्विवेदी सर। मैं उनको बुलाना चाहूंगा एंड रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एआई के ऊपर बोलें। सर का रिसर्च टॉपिक ही 28 ईयर से एआई के ऊपर रहा है, उनकी टीचिंग एआई के ऊपर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, एंड सर ने काफी काम किया हुआ है इसके ऊपर। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्रोफेसर संजय कुमार द्विवेदी सर to come and talk about like social impact on AI. So please sir. Thank you Lagan and your team, all TEDx members of BBAU for organizing this event for the first time in university. And our Vice Chancellor has always motivated us for such kind of events. And within the span of 1.5 years, I have seen that so many events have happened in our university. And TEDx is one of them. Rather, I would like to say TEDx is a unique event that in the way that all its contents will be uploaded on its website, and all the content, including our Vice Chancellor's just concluded talk, it will be uploaded and it will go globally. So, with these words, I once again thank you to our Vice Chancellor for coming over here despite his very busy schedule and taking a very motivational talk to all of us. Just to say a few words about how AI, artificial intelligence, is impacting all of us in our daily life, especially in terms of impacting the social media. Social media, it all started in late in 1990 when internet has come. Tim Berners-Lee was the person who invented the internet, that is collection of computers, networked computers. Then in 1991 the first web browser, जैसे आप यूज करते हो ना, Chrome etc. First web browser come. Later in the same decade, just before 2000 was arriving, we encountered 6 Degrees. 6 Degrees was the first ever social media site that came into existence, but it collapsed within 3 years because there was no business model as such for 6 Degrees, despite the fact that there were 3 million subscribers to 6 Degrees. Then the process continued. Facebook came, then YouTube came, 2004, 2006, Twitter came, which is now X, it is known as X. And so many social media platforms came. In 2009, WhatsApp came. In 2011, Instagram came. Then so many other platforms come. And we are in fact addicted to all these platforms. So my entire lecture's content and the theme and the motive is to keep you aware that social media platforms are not making you busy. These are making you distressed. These are making you frustrated. This is the overall theme of my topic, and the best thing is that artificial intelligence and machine learning technologies which came into existence over social media in 2019 and onward, just before the corona pandemic appeared. The bombardment of artificial intelligence and social media onto social media platforms appeared, and you can easily imagine nowadays each one of you is addicted to anyone or most of the social media platforms. You devote most of your time on social media, and the result is the only thing is that you become mental sick. Most of us, and this is not the thing that I am saying, most of the researchers, internationally established researchers, are simply saying that social media platforms have made the people sick, and especially in India. I would like to just quote one example. TikTok, you all know, it is a product of China. Later on, when it was launched internationally, one of the American company, ByteDance, acquired it. Or there was a survey conducted on social media platform users, especially the TikTok, the short video app. चाइना में जब उनसे पूछा गया कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, स्मॉल किड से, तो उन्होंने बोला कि मैं साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहता हूँ। उन्हीं टिकटॉक यूजर से जब यूएस में पूछा गया कि क्या बनना चाहते हो, तो उन्होंने क्या बोला, आई वांट टू बिकम स्मॉल किड, यूट्यूबर, आई वांट टू बिकम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो ये जो रिस्पॉन्स था, रिस्पॉन्स वाज वेरी शॉकिंग। क्यों शॉकिंग था? कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाइना में होने के बाद भी वो कंटेंट वहां पे सर्व नहीं हो रहा था
जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अमेरिका में सर्व हो रहा था। सिमिलर थिंग इज वाइडली हैपनिंग इन आवर कंट्री। तो आपको थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि जो AI/ML के एल्गोरिथम्स हैं वो इतने शार्प हैं, इतने वाइड हैं, इतने डीप हैं कि आपको पता नहीं चलेगा और आपका एडिक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में कब होने लगेगा। ये एल्गोरिथम एक बार मार्क जुकरबर्ग ने बोला। मार्क जुकरबर्ग ने किसी इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि आपका जो फेसबुक प्लेटफॉर्म है, दैट इज मेटा प्लेटफॉर्म, तो ये जो मेटा प्लेटफॉर्म है जिसने इंस्टाग्राम भी हायर कर रखा है, इसी का प्रोडक्ट है, व्हाट्सएप भी इसी का प्रोडक्ट है। तो मार्क जुकरबर्ग जो ओनर है, इनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हो कि फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर जो है आप यूजर्स को कितना एडिक्ट बनाना चाहते हो। तो इनका कहना था कि हमारा तो बस चले तो हम रात को भी इनको इससे चिपकाए रखें। दैट मीन केवल एक रात बची है जिससे आप जिसकी वजह से सोने की वजह से, नींद की वजह से आप बचे रहते हो। तो ये जुकरबर्ग का स्टेटमेंट, यानी कि they want you to use the social media platforms throughout the day, 24 hours a day, all 7 days a week. That is the statement given by Mark Zuckerberg, and that is why American Surgeon General ने क्या बोला, अपने कंट्री यानी कि अमेरिका में इन्होंने कहा कि बच्चों को इससे दूर रखना है, क्योंकि बच्चे हमारे सोशल मीडिया एडिक्ट होते, मेंटल सिकनेस के शिकार हो रहे हैं। और आपको पता हो कई सारी नई बीमारियां आ रही हैं बाय यूजिंग दिस। फोमो आपको पता होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ फेडिंग आउट, यानी ये सब बीमारियां ऐसी हैं जो सोसाइटल अटेम्प्ट की ओर ले जाती है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पीयू रिसर्च बोल रही है, जो अमेरिका की फेमस रिसर्च कंपनी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल बोल रहा है, और जो बोल रहे हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कई सारे रिसर्च हुए हैं, कई सारे सर्वेज हुए हैं, ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में सर्वे हुए हैं। इफ यू डोंट वांट टू बिलीव ऑल दीस डेटा, यू जस्ट गूगल इट एंड यू विल फाइंड एवरीथिंग क्लियर। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि AI/ML के जो एल्गोरिथम्स हैं वो इतने पावरफुल हैं कि आपको ऐसी चीज रिकमेंड करते हैं, आपने एक क्लिक किया, सो मेनी डेटा हैज गॉन टू देयर साइट। आपका डेटा, डेटा इज सो मच वैल्यूएबल। आपका डेटा इतना वैल्यूएबल है कि डेटा बिकम्स नॉलेज एंड नॉलेज बिकम्स एवरीथिंग फॉर यू। आपको अपना पैसा रुपया खर्च नहीं करना है, आपको केवल डेटा देना है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे, आपको सर्वे के फॉर्म में, फीडबैक के फॉर्म में डेटा भरवाएंगे, और वो डेटा आपको, भाई मेरा डेटा किस काम का, मैं तो ऑर्डिनरी आदमी हूँ, मेरा डेटा से क्या कर लेंगे। तो आपके साथ जो दुनिया भर की साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे वो डेटा है, और वो डेटा बड़े कॉस्टली है। अगर कॉस्टली ना होते तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ बिफोर आई कंक्लूड। वो डेटा फेसबुक को कम से कम 10 बार फाइन लगी हुई है। आपको पता है कि नहीं, फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है वो मेटा है, जिसने इंस्टाग्राम भी एक्वायर कर रखा है, और 2012 में व्हाट्सएप को भी खरीद लिया। 2009 में व्हाट्सएप लॉन्च हुआ, 2012 में एक्वायर कर लिया। 2014 में फेसबुक कह रहा था व्हाट्सएप को, आपके बारे में आपको शायद पता ना हो, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन करता है डेटा का, यानी आपका डेटा कोई और नहीं दे सकता। दिस इज व्हाट व्हाट्सएप सेज इन इट्स पॉलिसी, जिस पे आप साइन करते हो। इंडियन गवर्नमेंट की CIC ने भी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी व्हाट्सएप को फाइन किया, फेसबुक को फाइन किया, और यूरोपियन यूनियन ने 450 मिलियन यूरो का उसको फाइन लगाया, जो कि मार्क जुकरबर्ग को एडमिट करना पड़ा और देना पड़ा कि हम यूजर का डेटा सेल कर रहे थे मार्केट में। जबकि व्हाट्सएप को फेसबुक ने जब एक्वायर किया तो उसने ये कमिटमेंट किया था कि व्हाट्सएप की जो पॉलिसी है वो एज इट इज रहेगी, वो नहीं बदलेगी, यानी कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन रहेगा। आपका डेटा मैं देख पाऊंगा, मेरा डेटा केवल आप देख पाओगे, वो भी जो परमिशन देते हो। लेकिन फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर करने के 2 साल के भीतर ही सारा डेटा बेच दिया। कैम्ब्रिज एनालिटिका एक कंपनी है ब्रिटेन की, और ट्रम्प साहब पिछली बार जब इलेक्शन हारे थे उसी समय की बात है, उस डेटा से इलेक्शन जीते वो हारे गए। और आपको शायद ये पता हो, 1000 अकाउंट कम से कम कश्मीर में बंद हुए व्हाट्सएप के, जो फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे थे। ऐसे ही ब्राजील का इलेक्शन इन्फ्लुएंस हुआ था रिटन डॉक्यूमेंट्स से सारे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो जब इतने बड़े लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, इनके माइंड पे असर आ सकता है, तो कॉमन मैन पे कितना असर आता होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, जो कि AI गवर्न कर रही है 2019 से टिल डेट। तो आई अर्ज ऑल ऑफ यू, डिटेल में आपसे बात करूंगा, सर बैठे हुए हैं, सर का बहुत वैल्यूएबल टाइम है, तो डिटेल में आगे बात करूंगा कभी। बट ओनली थिंग आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम ईच वन ऑफ द यंगर वंस, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करें, जरूर करें, लेकिन थोड़ा सेंसिबल होके करें, क्योंकि आपको वो बीमारी लग गई होगी तो फिर कोई बचा नहीं पाएगा।
फिर ऐसी ऐसी चीजें रोज देखने को आ रही हैं, सब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म। फोमो आपने बड़े कॉमनली सुना होगा, फोमो इज अ बीमारी, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि दूसरे क्या कर रहे हैं उसको देख के आप हाईली इन्फ्लुएंस हो जाते हो, लड़ने लगते हो, झगड़ने लगते हो, फैमिली रिलेशन तक खत्म हो रहे हैं। ये रिसर्च ने प्रूव किया हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो आप यंगर हो, आपको एकेडमिक्स पे और करियर पे ध्यान देना है, ना कि टिकटॉक पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इनकी जनरेटेड कंटेंट नहीं है, ये एआई जनरेटेड कंटेंट है। तो एआई जनरेटेड कंटेंट में मजा तो सबको आता है, लेकिन भुगतना भी फिर आप ही को पड़ता है। तो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर फॉर अवेयर अस ऑन सोशल मीडिया। जैसे कि सर ने बोला कि सोशल मीडिया के डिसएडवांटेज भी हैं, एडवांटेज भी हैं। बहुत सारी चीजें हैं सोशल मीडिया पे, डिस्ट्रैक्शंस हैं बच्चों के लिए। एंड सर ने बहुत अच्छी तरीके से मतलब हमको समझाया कि सोशल मीडिया को किस तरीके से हम प्रोडक्टिव वे में यूज कर सकते हैं इस चीज को। एंड थैंक यू सो मच सर।